ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಕಾರ್ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಮಾಡಿರೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸಾಬೀತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳೇ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಹುತೇಕ NIA ಅವ್ರನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಫಲಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ವೈದ್ಯರು, ಅತ್ಯಂತ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಹೀನ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಧರ್ಮದವರು, ಯಾವ ಸಮುದಾಯದವರು ಈ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ಆ ಸಮುದಾಯದವರು ಖಂಡಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಸಮುದಾಯದ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಖಂಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಅವರಿಗೆ ಬೆನ್ನು ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಆ ಧರ್ಮದವರೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ಹಿಂದುತ್ವದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೊಂದಿರುವ ಪಕ್ಷಗಳು, BJP ಮತ್ತದರ ಸಂಘ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪದೇ ಪದೇ ಜನರ ಮುಂದಿಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಹೆಚ್ಚು, ಅದನ್ನು ಅವರ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಖಂಡಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿನೇ ಅವರ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ಸಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಗುರು ಇಮಾಮ್ ಉಮರ್ ಇಲಿಯಾಸಿ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಈ ದೆಹಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟನ್ನು ಮರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ, ಮಾನವೀಯತೆಯ ಕೊಲೆ ಆದ ಹಾಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥವರ ಹೆಸರುಗಳು ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇನ್ನಷ್ಟು ದುಃಖ ತರಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ, ಒಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಧರ್ಮಗುರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಲದು, ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವರು, ಹಿಂದೂ ಆಗಿರಲಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಸಿಖ್ ಆಗಿರಲಿ, ಬೌದ್ಧ ಆಗಿರಲಿ, ಆ ಧರ್ಮದವರು ಈ ಥರದ ಹೀನ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಧರ್ಮದ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸಬೇಕು, ಯಾರು ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತಾರೆ, ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಳಗಿಂದೊಳಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾನೇ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೂ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ನಮ್ಮ ಪರ ಇದೆ, ಇಂತಹ ಹೀನ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ಸಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ BJP, ಹಿಂದುತ್ವ ಪದೇ ಪದೇ ಸಾಬೀತು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಇವರು ಈ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇನ್ನಾದರೂ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಖಂಡ ತುಂಡವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಸಮುದಾಯದ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳಬಹುದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. और जितनी भी निंदा की जाए कम है. मुझे लगता है कि निर्दोष लोग इसमें मारे गए हैं. मैं अपना दुख प्रकट करता हूं और तमाम पूरा देश इस समय बहुत दुखी है. जो भी इस तरह के वाकयात होते हैं जिसमें निर्दोष लोग मारे जाते हैं, मुझे लगता है कि ये इंसानियत का कत्ल है. और जिस तरह से ये पहले भी जिस तरह से पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, उसके बाद अब ये दिल्ली का जो ब्लास्ट हुआ है, इसमें जिस तरह से निर्दोष लोग मारे गए हैं, तो मुझे लगता है कि इसको मैं इंसानियत का कत्ल कहूँगा. और जिस तरह से खास तौर पे जो मुस्लिम समाज की तरफ से जो नाम आए हैं, जिस तरह से पढ़े लिखे लोगों के जो नाम आए हैं, ये और ज्यादा दुखद हमारे लिए, हमारे समाज के लिए भी सामने बात आई है. वैसे तो मैं हमेशा कहता हूं कि हर समाज में अच्छे लोग ज्यादा होते हैं, चंद लोग खराब होते हैं, तो इसका मतलब सारा समाज खराब हो, ऐसा होता नहीं है. लेकिन फिर भी इस तरह की जो वाकयात जो वारदात हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हमें इस बात की फिक्र करनी होगी. वो राष्ट्र विरोधी ताकतें सक्रिय हो गई हैं और वो पड़ोसी देश सक्रिय हो गए हैं. पहले वो लोग पढ़े लिखे लोगों को इसमें अपना टारगेट बना रहे हैं, उनको शामिल कर रहे हैं, जबकि इस्लाम पीस का मजहब है, इस्लाम बचाने का नाम है, इस्लाम मारने का नाम नहीं है. मुझे लगता है कि वो लोगों को गुमराह किया जा रहा है, उनको गुमराह करके उनको जो भी बताया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है, उसकी बड़ी फिक्र की बात है और हम सबको इसकी फिक्र करनी चाहिए. क्योंकि इस्लाम बचाने का नाम है, इस्लाम शांति का मजहब है. आज इस्लाम को बदनाम करने की साजिशें रची जा रही हैं. नाम तो है जैश मोहम्मद, लश्कर तोयबा, मोहम्मद की सेना और लश्कर तोयबा, मोहम्मद का लश्कर, नाम उन्होंने इस तरह के रखे हुए हैं. तो मैं तमाम आज अपील भी करना चाहता हूं, तमाम सबको बताना भी चाहता हूं, खास तौर पे जैश मोहम्मद और लश्कर तोयबा जो इन्होंने नाम रखे हैं, अल्लाह के वास्ते इस नाम को हटा दीजिए, क्योंकि ये आतंकवादी संगठन है. आतंकवादी नाम रखें, मोहम्मद को और इस्लाम को बदनाम ना होने दें. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बचाने के लिए आए थे, रहमत बन के आए थे, रहमतुल लिल आलमीन थे. इस्लाम बचाने का नाम है. आज इस्लाम को और मोहम्मद साहब को बदनाम करने की साजिशें हो रही हैं. तो मुझे लगता है कि हमें तमाम खास तौर पर मुसलमानों से
ये बताना चाहता हूं कि अब हमारी जिम्मेदारी ज्यादा हो गई है। मैं चीफ इमाम होने के नाते आने वाले शुक्रवार के दिन देश की 5.5 लाख मस्जिदों से इस आतंकवाद के विरोध में इसका ऐलान होने वाला है, और जो निर्दोष लोग मारे गए हैं उनके लिए इस शुक्रवार को नमाज भी उनके लिए उनकी आत्मा की शांति के लिए भी दुआएं की जाएंगी। लेकिन कई बड़ी साजिशें हैं, इससे हमें सबको एक होकर सतर्क रहने की जरूरत है। देश में राष्ट्र विरोधी ताकतें सक्रिय हो गई हैं। हमारे देश में जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर है, तो ये पड़ोसी देश को उन शक्तियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो सचेत रहने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, एक होने की जरूरत है। एक होकर इसका आतंकवाद का हम मुकाबला करेंगे, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पे कहा था कि मैं यूएन के अंदर कि मैं जब तक उस देश के साथ बातचीत नहीं करूंगा जब तक वो जो देश आतंकवाद को अपने यहां से खत्म नहीं कर देता। तो मुझे लगता है कि भारत ने आज इसकी शुरुआत, भारत इस आतंकवाद को बहुत जमाने से झेल रहा है, और मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि सारे विश्व को आतंकवाद के विरोध में खड़ा होना होगा, तभी आतंकवाद का मुकाबला कर पाएंगे। चूंकि आतंकवादी हो या आतंकवाद, ये शैतान है और ये इंसानियत के दुश्मन है। यकीनन इसी के लिए अब हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है। मैं चीफ इमाम होने के नाते मैं तमाम मुसलमानों से, मुस्लिम संगठनों से ये अपील करना चाहता हूं कि अब आगे आइए, अब इस आतंकवाद के खिलाफ अपनी मुहिम को आगे बढ़ाइए। जितनी जिम्मेदारी हिंदू की है, सिख की है, हर समाज की, हर धर्म की है, हमारी भी उतनी जिम्मेदारी है। क्योंकि हमारा नाम, मुस्लिम समाज का नाम बदनाम हो रहा है, जबकि इस्लाम पीस का मजहब है, सलामती का मजहब है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बन के पूरी दुनिया में आए, रहमत बनकर आए थे। इस्लाम बचाने का नाम है, मारने का नाम नहीं है। लेकिन जो लोग इस तरह से हरकतें कर रहे हैं, लोग गुमराह हो रहे हैं या गुमराह किए जा रहे हैं, उन्हें समझने की जरूरत है। और हमें आज एक होकर इस आतंकवाद के खिलाफ इसका विरोध करना होगा, एक साथ इसका मुकाबला करना होगा। हमें तभी एक होकर इस आतंकवाद को समाप्त कर सकेंगे। देखिए, ये जो यात्रा चल रही है वो तो एक ऐसी यात्रा है जो धर्म की यात्रा है, वो यात्रा है जो जोड़ने की यात्रा है, वो यात्रा है जिसमें एक होने की यात्रा है, वो यात्रा है जिसमें भारत को एक करने का संदेश है। तो मुझे लगता है कि वसुधैव कुटुंबकम की जो बात है वो पूरे भारत को एक करने, पूरे विश्व को एक करने की यात्रा है। मुझे लगता है कि उस यात्रा को सबको एक होकर इस यात्रा में शामिल भी होना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्र की यात्रा है। और ये राष्ट्र की यात्रा, चूंकि हम हमेशा सबको की बात कहते हैं, हमारी सबकी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, हमारी पूजा पद्धति सबकी जरूर अलग हो सकती है, हमारे इबादत करने के तरीके जरूर अलग हो सकते हैं, हमारे पंथ जरूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म इंसान और इंसानियत का है। भारत में रहते हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र प्रथम है। इस भाव के साथ हम सबको एक होना चाहिए। कई लोगों ने ये भी कहा कि उनकी यात्रा नहीं निकलने देंगे, और आप चीफ इमाम हैं तो क्या आपको भी मौका मिलेगा तो आप शामिल होंगे? यकीनन मैं इस बात के लिए कहता हूं कि ये चूंकि धर्म जो है, धर्म जोड़ने का नाम है, धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। तो ये यात्रा धर्म की यात्रा है, वो यात्रा जिसमें राष्ट्र को एक करने की यात्रा है, जहां राष्ट्र एक होकर चलने की यात्रा है। तो मुझे लगता है कि जहां एक होने की बात है, जहां जुड़ने की बात है, जहां राष्ट्र की बात है, वहां एक होकर सबको रहना चाहिए। हम सबको एक होकर ही इस तरह से रहेंगे, तभी हम जाके पूरे भारत में, पूरे विश्व में विश्व बनेंगे।